Hello everyone, welcome back to our channel, The Cracker. So today in this another session of this mock practice series, we are going to discuss the next part for the LC, letter of credit. So we have already uploaded the previous part. You should follow, and in that part some important questions has been already discussed. And this is module A. We are discussing for the BFM, and we are going one by chapters, and we'll cover all these chapters in the next 3 to 4 videos, right? So simultaneously we are also planning some case studies will be also uploaded for your preparation. Okay, so just stay tuned to our channel and just keep preparing. ठीक है, so I am Sumant. Let's start the session for today. और आज के जो सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एलसी का जो कि कवर कर लेते हैं, समथिंग 50 क्वेश्चंस, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है विल ट्राई टू कवर इन दिस सेशन. सो हियर समथिंग लाइक 20 क्वेश्चंस, 44 हो गया था, सो 20 क्वेश्चंस विल डिस्कस हियर. ठीक है, so these are the questions. So before that I would like to say, while answering all the sessions, just try to solve by yourself, just try to analyze the sessions, then later on just match the concept whatever we are sharing with you. Okay, so then only it will be more valuable for you. As you know, in CIB exam, the more you analyze, the more you will be comfortable in the exams to answer the questions. ठीक है, so देखिए वाला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी. और okay, so you can see as per UCPDC 600. ठीक है, so as per UCPDC 600, one second, let me change the color. Okay, as per UCPDC 600, so as you know, ठीक है, so the words about or approximately used in connection with the amount of the credit or the quantity or the unit price stated in the credit are to be constructed as allowing a tolerance not to exceed dash percent, not to exceed percentage more or less than the amount, the quantity or unit price to which they refer. ठीक है, दैट मीन्स इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्मली यूसीपीडीसी में जब भी हम क्या क्या मेंशन करते हैं, इफ यू आर मेंशनिंग द अमाउंट और द क्वांटिटी और द यूनिट प्राइस, देन वी आर यूजिंग द पर्टिकुलर वर्ड एज पर द यूसीपीडीसी 600, दैट इज अबाउट. और about means here we can say approximately. ठीक है, so what this particular word, both these words implies, that is how much tolerance level. So this implies the tolerance level. So this implies the tolerance level. So here the question is how much the tolerance level. ठीक है, what is the percentage of that tolerance level? It can be, if this is our main, so tolerance level it should be plus and minus. so एक लिमिट रहता है, so कितना परसेंटेज लिमिट इसके अकॉर्डिंगली है. so यहाँ पर है आपका 10%, 5%, 1% और नो वेरिएंस इज अलाउड. सो आज पर यूसीपीडीसी यहाँ पर जो आपका अबाउट एंड अप्रोक्सीमेशन रहता है, यहाँ पर आपका टॉलरेंस परसेंटेज जो है दैट हैज बीन गिवन, दैट इज द 10% टॉलरेंस लेवल देता है. दैट इज अगर 60 है देन टॉलरेंस लेवल रहेगा आपका 60 + 10 और 60 - 10. गॉट इट, दैट मीन्स आपका मैक्सिमम रहेगा 70 और आपका मिनिमम, आपका जो मिनिमम इससे कम नहीं होना चाहिए, दैट इज 50. ठीक है, सो दिस इज द टॉलरेंस लेवल इज 10%. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. So here you see the next question. In a set of document submitted under the letter of credit, the date of shipment is 30 March 2009. Got it? So एक second. Submitted under letter of credit, the date of shipment is 30 March 2009, whereas the insurance policy is dated 3 April 2009. So in this case what should be done? ठीक है, so what should you do? So let's see. so यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट दिया गया है जहाँ पर कि आपका डेट ऑफ शिपमेंट का डेट क्या है, आपका 30 मतलब क्या है मार्च का, और जो इंश्योरेंस है वो लेटर देन दैट डेट ऑफ शिपमेंट है. तो यहाँ पर ये पूछ सकते हैं इट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट. ठीक है, सो इंश्योरेंस पॉलिसी का डेट क्या है 3 अप्रैल 2009. सो यहाँ पर देखिए वी मे एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड नेसेसरी कवर हैज बीन प्रोवाइडेड इन द पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ द शिपमेंट. एंड नेक्स्ट है वी मस्ट रिफ्यूज द डॉक्यूमेंट एज इट इज डिस्क्रिपेंसी. And next one is the date of insurance policy must be changed to be prior to the date of shipment.
एंड आइदर बी और सी और ई, ठीक है, इसमें से कोई बी और सी, बी और सी ये दोनों में से कोई एक होगा, और ई ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दिस, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपका इंश्योरेंस पॉलिसी, whereas the insurance policy is dated 3/4, ठीक है। सो इंश्योरेंस पॉलिसी का डेटेड 3 अप्रैल है। सो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट्स मोर मतलब वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर भी है वी मे एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट, हम इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेंगे प्रोवाइडेड नेसेसरी कवर हैज बीन प्रोवाइडेड। सो जितने भी हमारा स्टॉक से जब कौन सा डेट से शुड बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। सो अगर ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपका डेट ऑफ शिपमेंट से कवर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इफेक्टिव डेट कहीं से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो डेट है, पर अगर ये इंश्योरेंस डेट ऑफ शिपमेंट से कवर कर रहा है देन ओनली वी शुड एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंडीशन क्या है, इट शुड बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ द शिपमेंट, गॉट इट। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज मोर वैलिड फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड यहाँ पर जो डिस्क्रिपेंसी है, सो यू शुड फॉलो दिस एंड मस्ट बी चेंज टू बी प्रायर। सो ये तो अगर होता तो ठीक है, पर ये तो अभी तक नहीं हुआ है ना, ये तो आफ्टर द डेट है। सो दैट्स व्हाई वी शुड फॉलो कि अगर हमारा डेट ऑफ शिपमेंट से ये इफेक्टिव हो रहा है देन वी विल एक्सेप्ट दिस, ठीक है। सो ये जो ऑप्शन है बहुत ज्यादा क्लोजली मतलब क्लोज टू कैन से वैलिड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The beneficiary of an irrevocable letter of credit which was advised by us request us to add our confirmation under the circumstances. So जो भी आपका हमने कौन सा वाला यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया दैट इज इरिवोकेबल, गॉट इट। दैट मीन्स जो जिसको रिवोक नहीं किया जा सकता, मतलब इस वंस इज डन दैट मीन्स इट्स फाइनल, ठीक है। सो यहाँ पर जो है जो बेनिफिशियरी क्या बोल रहा है, which was advised by us request us to add our confirmation. So he want us to add our confirmation in that letter of credit. So इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट देखिए confirmation is added at the request of opening of bank and will be done only as per the arrangement, ठीक है। So we may do so as confirmation is usually course of business only and there is no commitment of the bank which adds the confirmation. We must add our confirmation as it was advised by us and we should decline it as no confirmation is necessary on the irrevocable letter of credit. Only a revocable letter of credit needs confirmation. We may यहाँ पर एक है कि देखिए irrevocable में नहीं चाहिए और revocable में confirmation चाहिए होता है, ठीक है। We may do so only after obtaining indemnity from the issuing bank. सो यहाँ से जो पॉइंट्स है देखिए, फर्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि confirmation is added at the request of opening bank, ठीक है। सो विल बी डन ओनली एज पर द अरेंजमेंट। सो कन्फर्मेशन जो होता है ओनली एज पर द ओपनिंग बैंक के रिक्वेस्ट पर होता है एंड विल बी डन एज पर द अरेंजमेंट। सो जो भी इसका अरेंजमेंट होगा अकॉर्डिंगली इट विल बी डन, ठीक है। सो यहाँ पर जो दिया है सो ये जो है बहुत ज्यादा क्लोजली इस केस में ये वाला है वैलिड आंसर, सो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और नॉर्मली रिवोकेबल इरिवोकेबल के बीच में क्या होता है कि रिवोकेबल में आपका कंफर्मेशन नीड होता है, इरिवोकेबल में नहीं चाहिए होता है। पर यहाँ पर अगर आपका ओपनिंग बैंक कंफर्मेशन चाहता है, इफ द ओपनिंग बैंक इज रिक्वेस्टिंग अस टू कंफर्म देन वी कैन डू दैट कंफर्मेशन एज पर द अरेंजमेंट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our bank opened an irrevocable letter of credit. Irrevocable letter of credit and our correspondent bank abroad negotiated the bill under the LC, got the reimbursement, got it. So when the documents were presented to our importer customer, he refused to pay on the plea that goods were not as per the contract, ठीक है। सो यहाँ पर केस क्या है, सिंपल केस है कि यहाँ पर हम है, सो एक सेकेंड, सो यहाँ पर हम है ए बैंक है जो कि इशू किया है एक लेटर ऑफ क्रेडिट, जो हमारा कॉरेस्पोंडेंट बैंक है बी, सो ही हैज नेगोशिएटेड दैट बिल अंडर द एलसी एंड गॉट द रीइंबर्समेंट। सो जो भी इसका है अमाउंट ही गॉट दैट बी, ये है आपका अब्रॉड में और ये है हमारा इंडिया में, गॉट इट। सो इस केस में हमारा मेन पॉइंट ये है कि जो भी हमारा कस्टमर है, जो हमारा कस्टमर माल को रिसीव करेगा, दैट इंपोर्टर कस्टमर ही रिफ्यूज टू पे, he refused to pay as the on the plea। वो क्या प्ली बोल रहा है, उसका रीजन क्या था, that is goods were not as per the contract। यहाँ पर गुड्स जो है जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। सो इस केस में इज इट वैलिड और नॉट। सो यहाँ पर केस स्टडी देखिए, वी विल वेरीफाई द गुड्स एंड टेक देम
into our possession. We cannot recover the money from the negotiating bank because as per UCBDC we deal in documents and not in goods. We will proceed to recover the amount from the importer. We will request the correspondent bank to pay back the money, and this is A or B, either A or B and none of the above. ठीक है. So here the main important thing is, as we are a banker, okay, so that means as a banker we deal with only with the document, got it? So we only deal with the documents. We have nothing to do what's the status of that goods or not. That is between the importer and the exporter, okay. So as per the UCBDC, ये जो सही B option देखिए, we cannot recover the money, sorry, we cannot recover the money from the negotiating bank because as per UCBDC, so हम negotiating bank से deal मतलब recover नहीं कर सकते. As per the UCBDC we deal in documents and not in goods, ठीक है. ये जो points है, not in goods, हम only document के साथ deal करते हैं and will proceed to recover the amount from the importer. So importer here has to pay that amount, ठीक है, and we will proceed for that, ठीक है, as per the UCBDC rule. सो ये है ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है. पर इन दैट केस देखिए यहाँ पर आपका और भी क्या है, इंपोर्टर क्या कर सकता है, अगर उसका एक्सेप्टेंस नहीं है, आज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, देन ही शुड वेरीफाई दिस, ठीक. उसका जो बैंक होता है नेगोशिएटिंग बैंक, ही शुड वेरीफाई ऑल दोस थिंग्स. सो एक कस्टमर का काम है कि वेरीफाई करके करना था, और हमारा तो डील है कि हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उसके अकॉर्डिंगली. सो यहाँ पर इंपोर्टर आपका एक्सपोर्टर के साथ बात कर सकता है, अगर उनका म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होता है देन वी कैन प्रोसीड एज पर द mutual benefits, but as per the UCBDC rule this has to be done, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर. Okay, next question. A letter of credit was opened by us stipulating for clean the, okay, एक लेटर ऑफ क्रेडिट हमने ओपन किया है, स्टिपुलेटिंग वहां पर पर्टिकुलर मेंशन किया गया है, क्लीन ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग, क्लीन ऑन बोर्ड लेटर की क्लीन ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग. While scrutinizing documents under the LC, we find that the notation some packages torn appears on the bills. Some packages torn appears on the bill of lading. We should, ठीक है. सो यहाँ पर हमने एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किए हैं. सो as per the जिसमें by stipulating for clean on bill, जिसमें क्या मेंशन किया गया था पर्टिकुलरली, क्लीन ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है. सो जब हम इसको वेरीफाई कर रहे थे डॉक्यूमेंट को अंडर दिस एलसी, सो हमें पता चला कि द नोशन मतलब एक पर्टिकुलर मेंशन किया गया है कि सम पैकेजेस टर्न अपीयर्स ऑन द बिल ऑफ लेडिंग. सो बिल ऑफ लेडिंग में कुछ मेंशन किया गया है, दैट इज सम पैकेजेस टर्न. सो इस केस में हम क्या करेंगे, सो यहाँ पर जो केसेस है देखिए, फर्स्ट केस क्या है, एक्सेप्ट द बिल ऑफ लेडिंग आज इट इज एज पर टर्म्स ऑफ एलसी, ठीक है. सो ट्राई टू रेक्टिफाई द इरेगुलरिटीज विद द शिपिंग एजेंट, वेट until the ship arrives and verify the goods. Immediately on receipt of the document, inform the negotiating bank by telefax or telephone or whatever telefax we can say that the documents are discrepant and they are held at the risk and responsibility of the negotiating bank, or either B or C, ठीक है. सो देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे पास आता है एज ए बैंकर, अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट आता है, इट शुड बी मैच completely, it should be fine, it should be with no discrepancy, right? सो यहाँ पर कुछ इशू हो गया है कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपका सम पैकेजेस टर्न, ठीक है. सो इस केस में हम क्या करेंगे, नेगोशिएट बैंक जो ऑप्शन नंबर डी है, एज पर दिस हम इमीडिएटली जो भी हमें पता चलेगा, जो भी इश्यूज है, इसको नेगोशिएटिंग बैंक को इन्फॉर्म कर देंगे एंड उनको उस मेल में, अभी हमारा सब मेल में होता है और टेलीफैक्स में भी हम कर सकते हैं कि उनको ये भी फोन कॉल में नहीं, हमें आइदर रिटन में सब कुछ मेंटेन करना चाहिए. सो वी शुड राइट एन मेल, ठीक है, और टेलीफैक्स भी होता है, ठीक है. सो जो भी कम्युनिकेशन हो हम करेंगे एंड उसमें ये मेंशन करेंगे कि डॉक्यूमेंट ये वाला इश्यूज है, सो ये डिस्क्रिपेंट है, दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट फाइन, ठीक है, नॉट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द यूसीबीडीसी. सो यहाँ पर आपका रिस्क में ये हो रहा है, इट्स ऑन योर रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट नेगोशिएटिंग बैंक, ठीक है. तो ये करने पर ये आपका नेगोशिएटिंग, अब क्या हुआ, अब ये इन्फॉर्म करने के बाद ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क आर विथ नेगोशिएटिंग बैंक. अभी हम फ्री हो गए, ठीक है, हमारे तरफ से देयर विल बी नो इशू, ठीक है. अगर कुछ इशू हुआ देन दैट विल बी solved, or that will be the liability for that negotiating bank, ठीक है. so we should do this for our part. so this is option number D है इसका सही आंसर. so देखिए
मतलब अच्छा केस स्टडी से यहाँ पर आप एनालिसिस करेंगे तो दिस इज एज ए बैंकर यू नीड टू डू ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली रिलेटेड है। ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज ओपन इन यूएस डॉलर। ठीक है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन हुआ है दैट इज इन यूएस डॉलर। द इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट कैन बी इन, सो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट यूएस डॉलर में हुआ है देन द इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है वो कौन से में होगा, कैन बी इन। सो ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है यूएस डॉलर ओनली इफ नॉट अदरवाइज स्टिपुलेटेड इन द क्रेडिट, in any freely convertible currency, in Indian rupee only, in US dollar only, either B or C. So सी यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है कि देखिए एलसी में अगर सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए, डी के देखिए यहाँ पर यूएस डॉलर ओनली लिखा है, यहाँ पर लिखा है यूएस डॉलर ओनली इफ नॉट अदरवाइज स्टिपुलेटेड इन द क्रेडिट। दैट मींस अगर एलसी में ये मेंशन नहीं किया गया है कि दैट इज मतलब आपका यूएस इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट भी यूएस डॉलर में है देन हम कंसिडर कर सकते हैं, पर अगर एलसी में मेंशन हुआ है देन वी शुड फॉलो दैट इट शुड बी इन यूएस डॉलर ओनली। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज मोर वैलिड इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी इशू नहीं है, ये जो वर्ड है ना इससे हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा क्लैरिफाई होता है कि आज पर द एलसी विल प्रोसीड, अगर एलसी में मेंशन है कि इट शुड बी इन यूएस डॉलर देन इट शुड बी राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज इसका करेक्ट आंसर। So question number 50, as per UCPDC 600, if there is no indication in the credit of the insurance coverage required, if there is no indication in the credit of the insurance coverage required, the amount of insurance coverage must be at least value of goods. ठीक है, so ओके एज पर यूसीपीडीसी ये बोला जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है अगर देयर इज नो इंडिकेशन इन द क्रेडिट द इंश्योरेंस कवरेज रिक्वायर्ड, सो यहाँ पर अगर मेंशन नहीं हुआ है कि कितना इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए इन द एलसी देन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज मस्ट बी एटलीस्ट वैल्यू ऑफ गुड्स। सो यहाँ पर क्या है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं हुआ एलसी में कि हमारा कितना इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कवरेज है इट शुड बी कितना परसेंटेज, ऑप्शंस देखिए 110% ऑफ CIF, 110% of FOB value, 100% of FOB value and 100% of CIF value। ठीक है, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है कितना परसेंट, जो इंश्योरेंस है इंश्योरेंस कवरेज शुड बी 110% ऑफ CIF वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है इट शुड बी 110% ऑफ CIF वैल्यू। ठीक है, एटलीस्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स, सो इतना होना चाहिए CIF वैल्यू का। गॉट इट। सो यहाँ पर जो मेंशन है आपका CIF वैल्यू क्या है, CIF मतलब जितने भी आपका है कॉस्ट, उसका जितना आपका गुड्स का कॉस्ट होगा उसमें आपका इंक्लूड होता है आपका इंश्योरेंस। ठीक है, सो इसमें और हो जाता है आपका फ्राइट बिल, सो ये हो गया CIF। ठीक है, सो ये है आपका इंटरनेशनल शिपिंग एक एग्रीमेंट है जिसमें कि आपका ये होता है कि चार्जेस, दैट इज चार्जेस ये कौन पे करता है, चार्जेस पेड बाय ए सेलर, सो सेलर पे करता है ये सब चार्जेस को। ठीक है, सो टू कवर द कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट ऑफ ए बायर्स ऑर्डर व्हाइल कार्गो इज इन ट्रांजिट। ठीक है, सो जब भी आपका ट्रांजिट है आपका CIF का मतलब C फॉर कॉस्ट दैट इज इंश्योरेंस एंड फ्राइट। ठीक है, सो इसका ये जो टोटल CIF का होगा इसका 110% आपका इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एन यूसी कॉल्स फॉर कमर्शियल इनवॉइस नॉट एक्सीडिंग 2 lakhs US dollar 2 lakhs। ठीक है, तो आज पर UCPDC द इनवॉइस कैन बी फॉर, सो यहाँ पर क्या है, द LC calls for commercial invoice not exceeding 2 lakhs। ठीक है, US डॉलर 2 lakhs, so LC में एक बोला है कि commercial invoice it should not be more than 2 lakh dollar। ठीक है, so as per UCPDC the invoice can be for, so it that means first है 2 lakh dollar and up to 2 lakh 20 and next है up to 2 lakh 10 up to 2 lakh 2000 नॉन ऑफ द अबव। सी अगर एलसी में कॉल हो रहा है कि आपका कमर्शियल इनवॉइस जो है 2 लाख अप टू 2 लाख नॉट एक्सीडिंग मतलब इट इज शुड बी 2 लाख। ठीक है, सो इस जो भी आपका एलसी में मेंशन हो रहा है इट एज पर द यूसीपीडीसी द इनवॉइस कैन बी, द इनवॉइस शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंगली। यहाँ पर मेंशन हुआ है अप टू 2 lakhs नॉट एक्सीडिंग, दैट मीन्स हियर आपका जो है 2 लाख ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, सो एज पर द व्हाटएवर द अमाउंट मेंशन इन दैट एलसी वी विल फॉलो दैट ओनली।
सो दिस हैज बीन क्लियरली मेंशन इन द यूसीपीडीसी 600. ठीक है, सो यहाँ का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. So Bank of Tokyo advised an LC, ठीक है, so to the beneficiary in India through BOB. ठीक है, so बैंक ऑफ टोक्यो ने एक LC एडवाइज किया है टू द बेनिफिशियरी. ठीक है, सो टू द बेनिफिशियरी एंड इन इंडिया थ्रू BOB. ठीक है, सो यहाँ पर BOT ने एडवाइज किया है इंडिया में, दैट इज थ्रू BOB में. ठीक है, सो ये इंडिया एंड ये टोक्यो. ठीक है, सो इट इंटेंड्स टू एडवाइज एन अमेंडमेंट थ्रू SBI. सो ये अभी क्या कर रहा है, पहले एडवाइज किया था BOB के थ्रू में, अभी ये इंटेंड कर रहा है कि एक एडवाइज करेगा एन अमेंडमेंट, मतलब ये जो LC में कुछ चेंजेस करना चाहता है या कुछ भी एड ऑन करना चाहता है उसको अमेंडमेंट वो थ्रू SBI करना चाहता है. सो वेदर इट इज अलाउड थ्रू यूसीपीडीसी. सो यूसीपीडीसी रूल के अंतर्गत इसका क्या है देखते हैं ऑप्शन में. So it is choice of SBI Bank to select any bank for advising amendment. It has to advise amendment only through BOB. It has to advise amendment through RBI only, either A or C and or none of the above. See, as per UCPDC जो भी आपका अपने फर्स्ट जिस बैंक के थ्रू में इसको एडवाइज किए हैं, all the amendments need to be डन थ्रू दैट पर्टिकुलर बैंक ओनली. सो यहाँ पर आपका जो है BOB के थ्रू ने आपका बैंक ऑफ टोक्यो ने पहले एडवाइस किया है. सो ये जो अमेंडमेंट है अभी जो SBI के थ्रू करना चाहते हैं ये नहीं हो सकता है. इट शुड बी डन थ्रू ओनली BOB. ठीक है, सो ये BOB के थ्रू पहले हुआ है, दैट्स व्हाई ये अमेंडमेंट भी आपका BOB के थ्रू होना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पर आपका SBI बैंक के पास चॉइस नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन में चॉइस है कि यहाँ पर जब वो बेनिफिशियरी को इश्यू कर रहे हैं, मतलब आपका एडवाइस कर रहे हैं, यहाँ पर जिसको ये यहाँ पर फर्स्ट केस में उसके पास ऑप्शन रहता है, और नेक्स्ट जो अमेंडमेंट के केस में ही हैज टू फॉलो दैट पर्टिकुलर बैंक फॉर दैट पर्पस. ठीक है, सो यहाँ पर जो है इट हैज टू एडवाइज अमेंडमेंट ओनली थ्रू BOB इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर. सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए. सो और भी बहुत सारा है क्वेश्चंस क्योंकि केस स्टडी है, दैट्स व्हाई वी नीड टू एनालाइज द थिंग्स. सो यहाँ पर आज के सेशन के लिए हम ये वाला लास्ट क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, एंड इन नेक्स्ट वॉल्यूम 3 वी विल कवर द नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस. ठीक है, सो चलिए जल्दी से खत्म करते हैं ये वाला को. इफ ए क्रेडिट कंटेन्स conditions without stating documents to be presented in compliance therewith, what should the bank. दैट मीन्स एक LC हमारे पास आया है जिसमें कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें अटैच होना चाहिए और टू बी प्रेजेंटेड जो जो हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए फॉर द कंप्लायंस मेंटेनेंस. तो इस केस में बैंक क्या करेगा. ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, हाउ टू सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द ओपनिंग बैंक, डिसरिगार्ड द कंडीशंस एज नॉट स्टेटेड, obtain documents in their description which appears to satisfy these conditions, either A or C and none of the above. So यहाँ पर देखिए LC में कंडीशन कुछ नहीं दिया गया है. So contains conditions without stating the documents to be presented in compliance herewith. ठीक है, सो हियर पर्टिकुलर इन दिस केस व्हाट विल डू. नॉर्मली कोई भी देखिए, कोई भी अगर हमारा ए पर्टिकुलर बैंक है, ठीक है, अगर पर्टिकुलर बी है, सो ए बैंक कुछ हमें करने के लिए बोल रहा है पर हम उसके अकॉर्डिंगली अगर वो मेंशन भी नहीं किया कि ये करना है, एंड इट शुड बी मेंशन. ठीक है, अगर हम ए के बिहाफ में कुछ कर रहे हैं दैट मीन शुड मेंशन कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है, क्या क्या करना है, इट शुड बी मेंशन. ठीक है, ये कंपलसरी है. अगर ये मेंशन नहीं किया है देन हम क्या करेंगे, फिर से इसको फॉरवर्ड करेंगे कि प्लीज मेंशन व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच शुड स्क्रूटिनाइज, व्हिच शुड लुक आफ्टर. ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट हमें देखना है आप प्लीज मेंशन करिए. सो हम ये लिख के मेल भेजते हैं नॉर्मल, दिस इज द प्रैक्टिस. ठीक है, बिकॉज इसमें आपका कंप्लायंस मेंटेन होता है, क्योंकि ए नहीं तो हमारे बी के ऊपर डाल देगा कि ये आपने तो नहीं किए थे, हमने तो कुछ बोला ही नहीं था. तो इसीलिए ये जो क्लैरिफिकेशन कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ऑल द कंडीशंस नीड टू बी मेंशन्ड एंड पर्टिकुलर दिस डॉक्यूमेंट पार्ट्स नीड टू बी मेंशन. ठीक है, सो अगर मेंशन नहीं है यहाँ पर जो पर्टिकुलर सही आंसर है इसका, डिसरिगार्ड द कंडीशंस एज नॉट स्टेटेड. अगर ये डॉक्यूमेंट टू बी प्रेजेंटेड वाला ऑप्शन मेंशन नहीं है और कंडीशन अप्लाई नहीं कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमें देखना है फॉर दैट कंप्लायंस, बिकॉज फॉर कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑल द टाइप्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस एज वेल. ठीक है, सो टू मेंटेन दैट ट्रांजैक्शन दिस कंडीशन इज वेरी कंपल्सरी टू बी मेंशन इन दैट केस. ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, डिसरिगार्ड द कंडीशंस एज नॉट स्टेटेड. अगर ये स्टेट नहीं हुआ है, अगर मेंशन नहीं है, देन वी विल नॉट
consider all those considers. So we will revert back to that bank. So please mention all the conditions that what are the documents we should look into. ठीक है, so we'll disregard the conditions. So ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर. Got it? सो यहाँ पर देखिए ऑब्टेन द डॉक्यूमेंट, जो ऑप्शन सी आपको दिखा देता हूँ. ऑब्टेन द डॉक्यूमेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन व्हिच अपीयर टू सैटिस्फाई दिस. सी ये डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है. अगर ये ऐसा कर लिए तो हम लायबल हो जाएंगे. अगर कुछ इशू होता है हमारा बैंक लायबल हो जाएगा, पर जो इशू में आ गया सब उसका तो लायबिलिटी है ना. बट सो हमारा अपना लायबिलिटी को नहीं लेने के लिए आपको कभी नहीं लेना है. अगर आज सब कुछ ए कर रहा है, हमें बस उसके बिहाफ में काम करना है, तो अपना लायबिलिटी में कुछ नहीं लेना है, अपना डिस्कशन पावर को यूज नहीं करना है, बस जो वो बोले वही करना है. अगर मेंशन नहीं है देन आपको उसको ए को कांटेक्ट करना है कि प्लीज मेंशन करिए, देन ओनली विल कंसीडर ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, यही वाला प्रैक्टिस होता है आपका नॉर्मल बैंकिंग में. ठीक है, और हैव टू क्लैरिफाई फ्रॉम द ओपनिंग बैंक. सीक क्लैरिफिकेशन नहीं, उनको रिटन में मेंशन करना चाहिए. विल जस्ट फॉलो दैट. ठीक है, सो इसको हम पहले डिसरिगार्ड करेंगे, उसके बाद हम भेज देंगे कि आप प्लीज मेंशन करिए. ये आपका नेक्स्ट प्रोसेस है. फर्स्ट प्रोसेस आपका क्या है, विल डिसरिगार्ड दैट कंडीशन एज नॉट. अगर क्यों मेंशन, मतलब इसको डिसरिगार्ड करेंगे क्योंकि ये मेंशन नहीं है, इट शुड बी मेंशन्ड. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर. सो ये रहा हमारा 10 क्वेश्चंस. अच्छा वाला क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई थोड़ा एनालिसिस करना पड़ रहा है. सो और भी कुछ क्वेश्चंस है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, सो जल्दी से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी आपको लाएं. और यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 मॉड्यूल ए में कम्प्लीटली समथिंग 140 क्वेश्चन है. अब 50 गया है, सो अभी तक हमें 80 क्वेश्चन कवर करना है. ठीक है, सो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी लाऊं. उसके साथ भी मैं और एक कुछ केस स्टडी आपका अभी मॉड्यूल सी का आएगा. ठीक है, जैसे कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का, सो साथ में लाना पड़ रहा है, साथ में और भी कुछ काम से. ठीक है, सो दैट्स व्हाई थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है, एक एक आ रहा है, फिर भी लेट्स सी क्या होता है. ठीक है, सो आप लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और मेन इंपोर्टेंटली एनालिसिस करिए. आपका मॉड्यूल ए एंड सी को पहले थ्योरेटिकल है तो जल्दी से जल्दी खत्म करिएगा. ठीक है, ओवरऑल कर लीजिए, हम आपका एमसीक्यू को प्रोवाइड करेंगे, वहाँ सबका रिवाइज भी हो जाएगा. और मॉड्यूल बी में जो जो आपका इंपोर्टेंट फॉर्मूला है उसको याद रखिए, कुछ कुछ केस स्टडी भी करिए, सो दैट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है एटलीस्ट यू कैन एनालाइज. ठीक है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आएगा हमें पता नहीं, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन नहीं आता है, उसका रिलेटेड क्वेश्चन आता है. सो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. पॉइंट यही है. और मॉड्यूल डी को ऐसा नहीं कि आपको इंपोर्टेंस नहीं देना है, मॉड्यूल ए डी सी को पहले खत्म करिए. इसमें आपका थ्योरेटिकल है, बाई चांस जैसे लास्ट टाइम आपका थ्योरेटिकल आया था, अगर वही रिपीट हुआ देन यू कैन इजीली क्रैक द बीएफएम पेपर. ठीक है, सो इसी के साथ हम आज के लिए यहीं पर सेशन को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं न्यू अपकमिंग सेशन में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए एंड जस्ट कीप लर्निंग. थैंक यू.